ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے صوبہ پنجاب کا۔ کھیلوں کا سامان تیار کر کے معروف شہر سیالکوٹ کی سپورٹس مارکیٹ متعدد مسائل کا شکار ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے ظفر وسیم سے۔ جی ظفر وسیم، کن مسائل کا سامنا ہے؟ جی بالکل جی، سیالکوٹ جو کھیلوں کے سامان کے تیار کرنے کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، اور سیالکوٹ میں یہاں پر سپورٹس مارکیٹ جو ہے وہ دو بازاروں میں ہے، ایک ڈپٹی باغ پہ ہے اور ایک بینک روڈ پہ قائم ہے، اور دونوں مارکیٹس جو ہے وہ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر انجمن تاجہ ڈپٹی باغ کے صدر حاجی شیخ محمد اسلم موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں یہاں پر سپورٹس مارکیٹ کے کیا مسائل ہیں۔ جی، صفائی کا اچھا انتظام نہیں ہے، یہاں پر گٹر سسٹم ابل کر باہر آتے ہیں، پانی باہر آتا ہے، لوگ یہاں سے گزر نہیں سکتے، لٹکی ہوئی تاریں ہیں جس کے اوپر سے رات کو چوہے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، دکانوں میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر پارکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے، جو سیالکوٹ میں بحران ہے پارکنگ کے حوالے سے۔ جو کسٹمر باہر سے آتا ہے وہ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتا، باہر کھڑی کرے تو پولیس والے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اسے اچھی سہولیات میسر ہونی چاہیے، ماڈل قسم کی سہولیات میسر ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کی معروف مارکیٹ کا پتہ چلے کہ سیالکوٹ میں سپورٹس مارکیٹ۔ جی بالکل جی، تاجروں کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک ماڈل سپورٹس مارکیٹ جو ہے وہ قائم کی جائے، اور یہاں پر جو ہے وہ ان سپورٹس مارکیٹ کی تمام مسائل کو حل کیا جائے تاکہ کھیلوں کے فروغ کے ساتھ ساتھ کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہو سکے۔ جی، وزیراعلیٰ پنجاب کے حکم پر بہاولپور میں بھی تجاوزات پر آپریشن شروع، مگر شہر بھر میں میونسپل کارپوریشن عملے کی تمام تر کارروائیاں عام شہریوں تک محدود اور بااثر افراد ہمیشہ کی طرح محفوظ ہیں۔ مزید جان لیں گے ساجد زہیب سے۔ جی بالکل، میں اس ٹائم موجود ہوں بہاولپور کے مشہور علاقہ حسینی چوک پر۔ یہ علاقہ محکمہ ہاؤسنگ کے جو ہے انڈر آتا ہے، لیکن یہاں پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ 100 فٹ یہ روڈ ڈکلیئر تھا، لیکن اب یہ جو روڈ ہے تجاوزات کی وجہ سے 30 فٹ تک آ بچا ہے۔ روڈ کے دونوں طرف پر جو رہائشی ہیں انہوں نے یا تو دکانیں بنا کے کرائے پہ دی ہوئی ہیں یا گیراج بنائے ہوئے ہیں یہاں پر۔ اس بارے میں ہم بہاولپور کے شہروں سے بات کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے یہ غریب لوگوں کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ یہ تو اپنی ذمہ داری پہ جو ہے نا وہ اپنا روزگار کما رہے ہیں، حالانکہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اپنا کاروبار مہیا کرے، ان کے روزگار کے وسائل بنائے۔ یہ اپنے آپ وسائل پیدا کر رہے ہیں، اپنے آپ وسائل اس سے وہ اپنے گھر کی روزی چلا رہے ہیں، اپنا کام دھندا چلا رہے ہیں۔ جی، آپ نے ابھی سنا شہروں کو یہ کہنا تھا کہ شہر بھر میں تجاوزات پر جو آپریشن کیا جا رہا ہے وہ صرف غریبوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ بڑے علاقوں میں، پوش علاقوں میں جہاں طاقتور لوگ رہتے ہیں، سیاسی لوگ رہتے ہیں، وہاں پر کوئی ایسا کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا۔ تمام کی تمام طاقت جو ہے وہ غریبوں کو آزمائی جا رہی ہے۔ وزیر پنجاب سے فوری نوٹس لیں۔ جی، قصور میں صوفی بزرگ بابا بلے شاہ کے مزار شریف کی تزئین و آرائش کا کام انتہائی سست روی کا شکار ہو گیا ہے۔ 1 سال گزر جانے کے باوجود بھی منصوبہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ تمام منصوبے تعطل کا شکار ہیں۔ مزید جانیں گے میں کاشف سے۔ جی میاں کاشف۔ جی شکریہ۔ میں اس وقت بابا بلے شاہ مزار شریف کے احاطہ میں موجود ہوں۔ بات کی جائے تو بابا بلے شاہ کے مزار شریف پر جو ہے وہ دنیا بھر سے جو ہے وہ زائرین کی آمد کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ 1 سال پہلے جو ہے وہ 2023 کے اختتام پر پنجاب حکومت کی جانب سے بابا بلے شاہ کے مزار شریف کی تزئین و آرائش کے نام پر جو ہے وہ 35 کروڑ روپے کا جو ہے وہ مبینہ طور پر ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ 1 سال ہونے کو ہے، کسی ایک منصوبے کی بھی جو ہے وہ اس کو پایہ تکمیل تک جو ہے وہ نہیں پہنچایا گیا ہے۔ کام جو ہے وہ بابا بلے شاہ کے مزار شریف کے احاطے کا انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ اس حوالے سے بات کی جائے تو ملک بھر سے جو زائرین آ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ بابا بلے شاہ کے مزار شریف پر آ کر جو ہے وہ شدید مشکلات کا جو ہے وہ تزئین و آرائش کی کام میں تاخیر کی وجہ سے جو ہے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے جب ہماری کچھ زائرین سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں پنجاب حکومت سے فوری طور پر نوٹس لیا جائے اور بابا بلے شاہ کے مزار شریف کی جو تزئین و آرائش کا کام ہے اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ جی، میاں والی میں ABN نیوز کی ایک اور کاوش رنگ لے آئی۔ تھل کینال پل پروجیکٹ کی تعمیر دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہے۔ مزید جانیں گے چودھری محمد آصف ارائیں سے۔ جی چودھری محمد آصف ارائیں، تعمیر دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ جی بالکل، میاں والی میں ABN نیوز کی ایک اور خبر پر ضلعی انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے۔ آج سے چند روز قبل میاں والی کے تھل کینال پل پروجیکٹ کے حوالے سے ABN نیوز نے یہ خبر نشر کی تھی کہ تھل کینال پل پروجیکٹ پر جو تعمیراتی کام ہے وہ مکمل طور پر بند پڑا ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ABN نیوز پر خبر نشر ہوئی تو انتظامیہ کی طرف سے تھل
नल कैनाल पुल प्रोजेक्ट के ऊपर दोबारा से तामीराती काम बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है। शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये काम बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, क्योंकि हम यहीं होते हैं, इसी जगह पे होते हैं, यहाँ पे हमारा दुकान का काम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो बहुत जल्दी में हो रहा है। पिछले साल तो कोई 6-7 महीने तक काम रुका हुआ था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब काम फिर चल पड़ा है और बहुत जल्दी में काम हो रहा है। काम जो है स्पीड के साथ हो रहा है और शहरियों का ये कहना है कि 6-7 माह तक ये काम बंद पड़ा रहा है, अब दोबारा से इस काम को शुरू कर दिया गया है और शहरियों की तरफ से तवक्को की जा रही है कि इंतज़ामिया इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके पाए तकमील तक पहुँचाएगी और शहरियों के लिए ये गुज़रगाह आसानी साबित करेगी। जी। बस्ती मलूक में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तजावुज़ात के खात्मे के लिए किया गया ऑपरेशन कारगर साबित ना हो सका। तजावुज़ात माफिया ने दोबारा अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। इलाके की अहम शाहराहों और फुटपाथों पर दोबारा गैर कानूनी कब्जे शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का तजावुज़ात माफिया के खिलाफ मुस्तकिल और सख्त कार्रवाई का मुतालबा सामने आया है। मज़ीद जानेंगे चौधरी अशफाक से। इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती मलोक दुनिया पर रोड पर, जो कि अरसा दराज से नजायज़ तजावुज़ात का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ होने वाला ऑपरेशन जो है वो कोई ख़ास उससे फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे ही इंतज़ामिया गई है दोबारा से वही काम शुरू हो गया है। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं। जी, इंतज़ामिया आई थी, रोड वगैरह साफ़ करके गई हैं, रेहड़ियाँ हटा के गए हैं। ये 6 माह, साल, 2 साल बाद इनको याद आ जाता है, ये आ जाते हैं, तो उनके जाने के फ़ौरन बाद 12 घंटे 14 1 घंटे 1 दिन 2 दिन बाद फिर दोबारा वही रेडियो वाले आ जाते हैं, कब्ज़ा हो जाता है, दुकानें आगे हो जाती हैं और रोड ब्लॉक हो जाता है। स्कूल टाइम भी बहुत मुश्किल होती है। एमरजेंसी कोई गाड़ी आ जाए, कोई मरीज़ आ जाए तो बहुत मुश्किल होता है। इतना टाइम पीछे से नहीं लगता जितना टाइम इधर लग जाता है। मरीज़ के लिए बहुत मसला होता है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि ये नजायज़ तजावुज़ात से मुस्तकिल तौर पर इनकी जान छुड़वाई जाए, ताकि यहाँ पर सफ़र करने वाले जो शहरी हैं उनको इन परेशानियों से बचाया जा सके। गुजरांवाला के नवाही इलाके एमनाबाद के RHC अस्पताल में जहां रिवैम्पिंग की मद में मिलने वाले 5 करोड़ रुपए में मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ। नक्शे पर मरीजों के लिए 6 अदद टॉयलेट्स होने के बावजूद नहीं बनाए जा रहे। इलाका मकीनों ने कमिश्नर गुजरांवाला से इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानेंगे जावेद यूसुफ विर्क से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला के एक तारीखी कस्बा एमनाबाद के RHC हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर करप्शन जो है वो सामने आई है। 5 करोड़ रुपए का फंड जो है वो रिवैम्पिंग के लिए मंजूर हुआ था। इस सिलसिले में जो अवाम का जो है गुस्सा और एहतजाज वो सामने आ रहा है। इस वक्त भी मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। अजब करप्शन की गजब कहानी है। तो ये पुरानी बिल्डिंग को जो है वो लेपा लपाई करके रंग रोगन करके अवाम के सामने रख रहे हैं, जो अवाम के साथ सरासर ज्यादती है। इससे अब ये देखें, इसे नक्शे के अंदर जो तकरीबन 6 वाशरूम जो है वो बनाए जाने का जो है वो ऐलान किया गया था। अब जो हम यहाँ पे आपने हम चेक किया तो तकरीबन सिर्फ 2 वाशरूम वो बना रहे हैं, वो भी नर्सों ने और डॉक्टरों ने अपने लिए जो है वो लॉक कर देने हैं। ये जो भाई ने कहा ये सही का है, और ये ना ये तकरीबन कोई 2-3 माह का काम था, ये इन्होंने 8-9 माह लगा दिए हैं। शहरी बेचारे रुल रहे हैं, खराब हो रहे हैं, कभी गुजरांवाला जाना पड़ता है, कभी कामों की जाना पड़ता है। शहरी जो है वो रुल गए हैं, 8 माह तकरीबन हो गए हैं और काम अभी तक नामुकम्मल है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया, DC साहब या कमिश्नर साहब इसके ऊपर फौरी नोटिस लें और इसमें मुलव्वस जितने भी किरदार हैं उनको सामने लाया जाए। इंतजामिया को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। ये अवाम का पैसा था, अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। जी। भवाना पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने के लिए पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस भवाना में पोलियो टीमों की ट्रेनिंग जारी है। ट्रेनिंग के हवाले से मज़ीद जानेंगे मोहम्मद अफजल रमाना से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने के लिए पोलियो मुहिम का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। भवाना में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस भवाना में जो है वो पोलियो टीमों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यूनियन काउंसिल मैनेजमेंट ऑफिसर सईद अहमद टीमों को जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है, इसलिए बात करते हैं। हमारी 2025 की पहली पोलियो मुहिम है जो पूरे मुल्क में हो रही है। तो हमने अपनी तहसील का जो हमारा टारगेट है वो 82,198 बच्चे हैं 5 साल से छोटे, तो उनको कवर करने के लिए हमने 404 मोबाइल टीमें बनाई हुई हैं और हमारी 19 फिक्स पॉइंट हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर बैठ आने वाले मरीज़ों के साथ आने वाले बच्चों को कतरे पिलाएंगे। और मुख्तलिफ़ अड्डों और ज़्यादा रश वाली जगह पे हमने 7 ट्रांजिट पॉइंट बनाए हुए हैं। जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम शहरियों से अपील करते हैं पोलियो टीमों के साथ जो है वो ताउन करें ताकि पाकिस्तान को जो है वो पोलियो फ्री मुल्क बनाने में मदद मिल सके। जी।
आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा से हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेरा के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 2500 साल पुराने आसार कदीमा के वाक़यात दरियाफ्त कर लिए हैं। कंडर बेदारी के मकाम पर दरियाफ्त होने वाले आसार कदीमा के बारे में जानेंगे हमारे नुमाइंदा आदिल हुसैन से। जी आदिल। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मानसरा के नवाही इलाके कंडर बेदादी में, जहां पर हज़ारा यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने तकरीबन 2500 साल पुराने आसार कदीमा दरियाफ्त किए हैं और बहुत सारी चीज़ें वहां से दरियाफ्त हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ हज़ारा यूनिवर्सिटी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर शाकुल्ला साहब मौजूद हैं। उनसे इस बारे में मजीद तफसीलात पूछते हैं। अभी जो मौजूदा में पीरियड मिले, हम इसको 4 मुख्तलिफ पीरियड में तकसीम कर रहे हैं उसकी एंटीक्विटी की बेस पे। जो सबसे नीचे, जो सबसे पहले लोग आए वो इंडो ग्रीक से, जो कि उसके प्रॉपर आसार मिल रहे हैं उसके नीचे से, और एक लंबे अरसे तक इधर रहे, जो कि उसकी पीरियड तकरीबन ये 2800 साल, 2600 से 2800 साल तक पुराना आ रहा है। उसके बाद इंडो पार्थियन जो कि ईरानियन थे वो भी यहाँ पे आबाद रहे, उसकी भी बहुत अच्छे आसार और उसके कांस के साथ उसकी कंफर्मेशन हो गई। और उसके बाद जब आते हैं कुशांस, तो उसका एक लंबा पीरियड इधर रहता है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज उसके इधर हमने अनअर्थ कर दिए। और जब उसकी पीरियड खत्म हो जाती है जिस तरह बुद्धिज्म का, तो फिर यहाँ पे हिंदू शाही पीरियड की हमें बहुत अच्छे आसार मिले जो उसकी मुख्तलिफ एंटीक्विटीज है, और टॉप पे इसके मौजूदा पीरियड के आसार है। जिस तरह आपने सुना कि यहाँ से तकरीबन 2800 साल पुराने और उसके बाद तकरीबन 4 मुख्तलिफ अदवार के आसार कदीमा मिले हैं। जी। लाखड़ा कोल फील्ड में अलपुरी शांगले से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों मजदूर माइनिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। हुकूमती तवज्जही के बायस लाखों मजदूर माइनिंग सेक्टर में बुनियादी आइनी हुकूक से महरूम हैं। हिफाजती इक़दामात ना होने की वजह से कोयला कानों में हादसात मामूल बन चुके हैं। मज़ीद जानते हैं अलपुरी से गाजी अहमद से। जियाज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम ज़िला जामशोरो के मुज़ाफ़ाती इलाका लाकड़ा कोल फील्ड में मौजूद है। यहाँ पर ज़िला शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों मजदूर यहाँ पर कोयला कानों में काम करते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि बाज़ औक़ात ये मजदूर हादसात के शिकार हो जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ माइनिंग शोबे से वाबस्ता अकबर अली खान मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। न यहाँ मुकामी लोगों के लिए कुछ है, न यहाँ मजदूरों के लिए कुछ है। यहाँ तो सिर्फ बस अल्लाह के असरे पे है, कुछ भी नहीं है। तो हमारा से क्या मुतालिबा करेंगे आप? हुकूमत से तो हमारा ये मुतालिबा है कि यहाँ खरब रुपए सेल टैक्स में या किसी भी सिस्टम में गवर्नमेंट के खाते में जाता है, तो ये मज़दूरों की मरहूनी मेहनत है। हुकूमत से मेरा ये दरख्वास्त है और ये मुतालिबा भी है कि आप यहाँ के मज़दूरों के लिए थोड़ा सोच लो। जिस तरह के आपने माइनिंग शोबे से वाबस्ता इस शेरी की गुफ्तगू सुनी, इसका ये कहना है कि यहाँ पर लाकड़ा कोल फील्ड से रोज़ाना की बुनियाद पर खरबों रुपए हुकूमती रेवेन्यू में जमा होता है, लेकिन हुकूमती सतह पर यहाँ पर अभी तक कोई अमली इक़दामात नहीं उठाए गए। कोई मजदूर कॉलोनी भी इधर नहीं है, साफ़ पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। इन्होंने सूबाई हुकूमत सन और वफाकी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालिबा किया कि मजदूरों की रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाई जाए और उनको सरकारी सतह पर तस्लीम किया जाए।